Introduction. Look at this bookshelf. There are 6 sections in the bookshelf. Ram's mother asked him to arrange 30 books in the shelf with each section containing equal number of books. Now how is Ram going to do the work? It is easy if Ram knew division. He has 30 books and 6 sections, so each section will have 5 books. Simple, isn't it? Do you want to learn how this is done? Let us together find this out. Objectives. At the end of this lesson, you'll be able to divide numbers by subtraction, divide numbers by long division method, divide numbers by short division method, check your division, divide by grouping numbers, relate division with multiplication. Equal sharing. Here are 6 apples and 3 caterpillars. If they share apples equally, each caterpillar will get 2 apples. 6 apples divided into 3 caterpillars are equal to 2 apples each. If there are 6 apples and 2 caterpillars, each caterpillar will get 3 apples. 6 apples divided by 2 is equal to 3 apples each. Divide by subtraction. We will now learn division by subtraction. Let us divide 16 by 4. Subtract 4 from 16. We get 12. Now subtract 4 from 12. We get 8. Subtracting 4 from 8, we get 4. Similarly, subtract 4 from 4, we get 0. Remember to keep subtracting till we get 0. Let us now see how many 4s have been subtracted. 1, 2, 3, 4. 4 4s have subtracted. So the answer is 4. That means 16 divided by 4 is 4. Long division. We will now divide 68 by 2 by long division method. For this, we write 68 divided by 2 as shown on screen. Look at the first number from left side in 68. It is 6. We start dividing from left side. First, we will divide 6 by 2. 6 divided by 2 is 3. So, we put that 3 right above the 6. Now multiply the 3 and 2 and put the answer right under the 6. Now we do subtraction. That is, 6 minus 6 is equal to 0. We carry down the second number. Now we will divide 8 by 2. 8 divided by 2 is 4. So we put that 4 right above the 8. Multiply the 4 and the 2 and put the answer right under the 8. Do the subtraction. That is, 8 minus 8 is equal to 0. We ended with a 0 at the bottom, and the answer is 34. Here 68 is dividend, 2 is the divisor. 34 is the quotient, and remainder is 0. Long division with remainder. Let's now solve another division question. Divide 25 by 3. The first number from left in 25 is 2. Can we divide 2 by 3? No, 3 cannot be divided by 2. Therefore, we take both the numbers from 25. Now divide 25 by 3. We know 3 multiplied by 8 is 24. And 3 multiplied by 9 is 27. 27 is more than 25. So we will take 3 multiplied by 8, which is 24. So put 8 right above 25. And put answer below 25. Now subtract. 25 minus 24 is 1. We can see 3 cannot divide 25 as we get a remainder as 1. Here 25 is dividend, 3 is the divisor, 8 is the quotient, and remainder is 1. Long division by 2-digit number.
Let us now learn to divide 948 by a two-digit number 21. The number 948 in the dividend and 21 is the divisor. 9 cannot be divided by 21. So look at the first two numbers from the left in the dividend. Divide 94 by 21. 21 fours are 84. Write 4 above 94 and 84 below 94. Subtract 84 from 94 and write answer below 84. Go to the next number in the dividend. The next number is 8. Now drag the number down. The number becomes 108. Now divide the new number 108 by 21. 21 fives is equal to 105. Place 5 above and the answer under 108. Subtract 105 from 108. Answer is 3. 21 cannot divide 3, so 3 is the remainder and 45 is the quotient. Short division method. Now we will divide 748 by 3 by short division method. Divide the first number in the dividend. 3 twos are 6, and 7 minus 6 is 1. Write 2 above and 1 near 4 to make it 14. Then divide 3 into 14. 3 fours are 12. 14 minus 12 is 2. Write 4 above and write 2 in front of 8 to make it 28. Then divide 3 into 28. 3 nines are 27. 28 minus 27 is 1. Put your answer 1 as the remainder. Check your division. There should be a way to check your answer. Let us look into it now. You must remember that 15 divided by 3 is 5. Is this answer correct? Let us check it. Here divisor is 3, quotient is 5, and remainder is 0. To check the answer, we need to multiply divisor and the quotient and then add the remainder to the answer. If the answer is equal to the dividend, then our answer is correct. Here the answer is 15. And this is equal to the dividend, therefore the answer is correct. Division by grouping. I have 36 marble tiles. I can keep 4 marble tiles in one box. How many boxes do I need? 4 marbles in the first box. Here 32 marbles tiles are left. 4 marbles tiles in the second box. Now 28 marbles tiles are left. 4 more marbles tiles in the third box. Now 24 marbles tiles are left. Similarly, we keep on adding 4 marbles tiles in each box. So at last we have 9th box in which last 4 marbles tiles are kept. 36 marbles tiles have filled up 9 boxes. 36 marbles tiles are put into equal groups of 4, need 9 boxes. Relation between division and multiplication. Friends, 18 divided by 2 is 9, and if we multiply this 2 and 9, we get 18. 2 multiplied by 9 is 18. 16 divided by 2 is 8, and 2 multiplied by 8 is 16. Similarly, 25 divided by 5 is 5, and 5 multiplied by 5 is 25. Summary. Let us summarize what we have learned. Division of numbers by subtraction method, long division method, short division method. Dividend is equal to quotient into divisor plus remainder. परिचय
जरा किताबों की इस शेल्फ को देखिए। इस बुक शेल्फ में 6 हिस्से हैं। राम की मां ने उससे कहा है कि वह शेल्फ में मौजूद 30 किताबों को हर हिस्से में इस तरह लगाए कि उनमें बराबर बराबर किताबें हों। तो राम ये काम कैसे करेगा? अगर राम भाग करना जानता होगा तो वह आसानी से ये काम कर लेगा। उसके पास 30 किताबें और 6 हिस्से हैं, तो हर हिस्से में 5 किताबें आ जाएंगी। है ना आसान? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे किया जाता है? तो आइए मिलकर पता लगाते हैं। आओ सीखें। घटाकर संख्याओं को भाग करना। लंबी भाग विधि के जरिए संख्याओं को भाग करना। लघु भाग विधि के जरिए संख्याओं को भाग करना। अपने भाग की जांच करना। संख्याओं के समूह बनाकर भाग करना। गुणा और भाग को आपस में जोड़ना। सामान बंटवारा। यहां 6 सेब और 3 कैटरपिलर हैं। अगर सेबों को बराबर बराबर बांटा जाए तो हर कैटरपिलर को 2 सेब मिलेंगे। यदि 3 कैटरपिलर में 6 सेब बांटे जाएं तो हर एक को 2-2 सेब मिलेंगे। अगर 6 सेब हों और 2 कैटरपिलर हों तो हर कैटरपिलर को 3 सेब मिलेंगे। यदि 6 सेबों को 2 से भाग दिया जाए तो हर एक को 3 सेब मिलेंगे। घटाने के जरिए भाग करना। अब हम घटाने के जरिए भाग देना सीखेंगे। आइए 16 को 4 से भाग देते हैं। 16 में से 4 घटाइए, हमें मिले 12। अब 12 में से 4 घटाइए, हमें मिले 8। 8 में से 4 घटाइए, हमें मिले 4। इसी तरह 4 में से 4 घटाइए तो हमें मिली 0। तब तक घटाते जाइए जब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाती। आइए देखते हैं हमने कितने 4 घटाए हैं। 1, 2, 3, 4, यानी 4 घटाए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर 16 को 4 से भाग दें तो 4 ही आएगा। लंबा भाग। अब हम लंबी भाग विधि से 68 को 2 से भाग देंगे। इसके लिए हम स्क्रीन पर दिए गए ढंग से 68 को 2 से भाग देना लिखेंगे। 68 की संख्या में पहले बाईं ओर वाली पहली संख्या को देखें। हम बाईं ओर से भाग करना शुरू करेंगे। पहले हम 6 को 2 से भाग करेंगे। 6 को 2 से भाग करने पर 3 आता है, तो हम इस 3 को 6 के ऊपर रख देंगे। 3 और 2 को गुणा करिए और इसके उत्तर को 6 के नीचे रख दीजिए। अब हम घटाएंगे। 6 में से 6 घटाने पर मिलता है 0। अब हम दूसरी संख्या की तरफ आते हैं। हम 8 को 2 से भाग देंगे। 8 को 2 से भाग देने पर मिलता है 4, तो हम इस 4 को 8 के ऊपर रख देंगे। 4 और 2 की गुणा करिए और उत्तर को 8 के नीचे लिखिए। अब 8 को 8 में से घटाइए, जवाब मिलेगा 0, यानी नीचे हमें मिली 0 और जवाब है 34। तो यहां 68 लाभांश यानी बांटी जाने वाली संख्या है और 2 भाजक यानी बांटने वाली संख्या है। 34 भागफल है और शेषफल है 0। शेषफल के साथ लंबा भाग। आइए भाग से जुड़े एक और सवाल को हल करते हैं। 25 को 3 से भाग करिए। 25 में बाईं ओर से पहली संख्या है 2। क्या हम 2 को 3 से भाग कर सकते हैं? नहीं, 3 को 2 द्वारा भाग नहीं दिया जा सकता। इसलिए हम 25 से दोनों संख्याओं को लेंगे।
अब 25 को 3 से भाग कीजिए। हम जानते हैं कि अगर 3 को 8 से गुणा किया जाए तो संख्या मिलेगी 24, और अगर 3 को 9 से गुणा करें तो परिणाम होगा 27। 27 25 से ज्यादा है, तो हम 3 को 8 से गुणा करके 24 संख्या को लेंगे। तो 8 को 25 के ऊपर रखिए और उत्तर को 25 के नीचे रखिए। अब घटाइए। 25 में से 24 घटाने पर मिलता है 1। हमें मालूम है 3 25 को भाग नहीं दे सकता, क्योंकि 1 शेष फल के रूप में बचता है। यहां 25 लाभांश है और 3 भाजक है। 8 भागफल है और शेष फल 1 है। 2 अंक वाली संख्या से लंबा भाग। आइए अब 948 को 2 अंक वाली एक संख्या 21 से भाग करते हैं। 948 लाभांश और 21 भाजक है। 9 को 21 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए लाभांश में बाएं से पहली 2 संख्याओं पर नजर डालिए। 94 को 21 से भाग दीजिए। 21 को 4 से गुणा करें तो 84 आता है। अब 4 को 94 के ऊपर लिखें और 84 को 94 के नीचे लिखें। 84 को 94 में से घटाएं और अपना उत्तर 84 के नीचे लिखें। अब लाभांश की अगली संख्या की ओर जाएं। अगली संख्या है 8। इस संख्या को नीचे ले आएं। अब ये संख्या हो गई 108। अब नई संख्या 108 को 21 से भाग करें। 21 और 5 की गुणा करें तो संख्या आती है 105। 5 को ऊपर रखें और उत्तर को 108 के नीचे रखें। 105 को 108 में से घटाएं। उत्तर है 3। 21 से 3 को भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए 3 है शेषफल और 45 है भागफल। लघु भाग विधि। अब हम लघु भाग विधि से 748 को 3 से भाग देंगे। लाभांश में पहली संख्या को भाग दीजिए। 3 को 2 से गुणा करने पर मिलता है 6। 7 में से 6 घटाएं तो मिलता है 1। 1 को 14 बनाने के लिए 2 ऊपर लिखें और 4 उसके निकट लिखें। फिर 3 से 14 को भाग दें। 3 गुणा 4 होता है 12। 14 में से 12 को घटाएं तो मिलता है 2। 4 को ऊपर लिखें और 2 को 8 से पहले लिखें तो ये बन जाएगा 28। अब 3 से 28 को भाग करें। 3 गुणा 9 होता है 27। 28 में से 27 घटाएं तो बचा 1। शेष फल के रूप में 1 आपका उत्तर है। अपने भाग की जांच करें। हमारे जवाब जानने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। आइए अब इस पर एक नजर डालते हैं। आपको याद होगा अगर 15 को 3 से भाग दें तो उत्तर होगा 5। क्या ये उत्तर सही है? आइए जानते हैं। यहां भाग देने वाली संख्या यानी भाजक 3 है, भागफल 5 है और शेषफल 0 है। इस उत्तर की जांच करने के लिए हमें भाग देने वाली संख्या और भागफल की गुणा करके उसमें शेषफल को जोड़ना होगा। अगर हमारा उत्तर लाभांश जितना ही आता है तो फिर हमारा उत्तर सही है। यहां उत्तर है 15 और ये लाभांश के बराबर है। इसका मतलब है कि हमारा जवाब सही है। समूह में भाग। मेरे पास 36 मार्बल टाइलें हैं।
मैं एक बॉक्स में 4 मार्बल टाइलों को रख सकता हूं, तो मुझे कितने बक्सों की जरूरत पड़ेगी? पहले बॉक्स में मैंने 4 टाइलें रखीं। अब मेरे पास 32 मार्बल टाइलें बची हैं। दूसरे बॉक्स में मैं 4 टाइलें और रखता हूं। अब 28 मार्बल टाइलें बची हैं। तीसरे बक्से में मैंने 4 और मार्बल टाइलें रखी हैं। अब मेरे पास 24 मार्बल टाइलें बची हैं। इस तरह अब हम हर बक्से में 4 मार्बल टाइलें रखते जाएंगे। तो आखिर में 9वें बक्से में हम अंतिम 4 मार्बल टाइलों को रखेंगे। यानी 36 मार्बल टाइलों से 9 बक्से भर गए हैं। 36 मार्बल टाइलों को 4-4 के बराबर समूहों में रखने के लिए 9 बक्से चाहिए। भाग और गुणा के बीच संबंध। मित्रों, अगर हम 18 को 2 से भाग दें तो जवाब होगा 9, और अगर हम इस 2 और 9 की गुणा कर दें तो हमें जवाब मिलेगा 18। यानी 2 और 9 की गुणा करने का परिणाम है 18। 16 को यदि 2 से भाग दें तो मिलता है 8, और यदि 2 को 8 से गुणा करें तो मिलता है 16। इसी तरह 25 को यदि 5 से भाग दें तो जवाब होता है 5, और 5 को 5 से गुणा करें तो जवाब होता है 25। हमने क्या चर्चा की? संख्याओं को निम्न विधियों के जरिए भाग देना। घटाने वाली विधि, लंबे भाग वाली विधि, छोटे भाग वाली विधि।